I. यूज ऑफ ought to. रूल 1. ought to का प्रयोग मॉरल ओब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे We ought to love our country. We ought to help those who are in need. You ought to help your poor friends. One ought not to make a noise in the class. He ought to be ashamed of his rude behavior. You ought to get better marks. One ought not to abuse a beggar. Students ought to work hard. Rule 2. ought to का प्रयोग strong probability, प्रबल संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे He ought to win the race. She ought to pass in the first division. The film ought to be a great success. Rule 2 completed. Rule 3. ought to का प्रयोग एडवाइस यानी सलाह को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे You ought to read the Gita. Students ought to get up early in the morning. Rule 3 completed. Rule 4. ought to का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी, तार्किक आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे Aditi ought not to be late. Aditya ought to start at once. Note, इन सभी परिस्थितियों में ought to के बदले should का प्रयोग किया जा सकता है। Rule 5. ought to plus have plus MV3 का प्रयोग past obligation को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे He ought to have worked hard. I ought to have visited my brother yesterday. You ought to have seen the film. She ought to have obeyed her husband. You ought to have helped her. Note, first, ought to का past tense form नहीं होता है, लेकिन इसका past tense form ought to plus have plus MV3 के रूप में प्रयुक्त होता है। Second, ought to तथा should का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है, अर्थात इसके प्रयोग में कोई अंतर नहीं होता है। Rule 5 completed. Rule 6. ought not to plus have plus MV3 का प्रयोग पास्ट के डिसअप्रूवल, नामंजूरी या अस्वीकृति को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे You ought not to have laughed at her mistakes. Veena ought not to have treated her husband like that. J. यूज ऑफ मस्ट. रूल 1. मस्ट का प्रयोग कंपल्शन यानी बाध्यता और स्ट्रॉन्ग मॉरल ओब्लिगेशन, प्रबल नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 out of the 10 questions. Cars must not be parked in front of the gate. One must keep one's promises. You must do as you are told. Soldiers must obey orders without questions. The patient must take medicine in time. Rule 1 completed. Rule 2. मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे We must go. I must have my money back. You must surrender yourself to her father. We must firmly deal with the antisocial elements. You must lend him ₹1,000. Page 249. Rule 3. मस्ट का प्रयोग ड्यूटी यानी कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे A soldier must fight for his country. A judge must be upright. Everyone must do his duty. Rule 3 completed. Rule 4. मस्ट का प्रयोग सर्टेनिटी, निश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे You must finish the work by tomorrow. We must win this match. Your father must be nearly 70 now. Rule 4 completed. Rule 5. मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, प्रबल संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे You must have heard about श्रीमती गांधी. He must be hungry after his long walk. He must be a robber. Rule 5 completed. Rule 6. मस्ट का प्रयोग इनएविटेबल, अनिवार्य या अवश्य संभावी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे We must all die. If we want to keep ourselves fit, we must get up early. Students must work hard to get 80% marks. Note, first, written orders और instructions, लिखित आदेशों या निर्देशों को एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है,
जैसे एम्प्लॉयज मस्ट बी एट देयर डेस्क्स बाय 10 AM. वर्कर्स मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन संडे नेक्स्ट. सेकंड, अधिक तीव्रता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए शुड के बदले मस्ट का प्रयोग किया जाता है. ए. यूज ऑफ यूज टू. रूल 1. यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन, भूतकाल की आदत या अवस्था को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग. गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून. My grandmother used to go to temple every morning. She used to play Ludo before her marriage. People used to think that the sun traveled round the earth. Note: first, used to तथा would दोनों का प्रयोग past habit को एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे के बदले किया जा सकता है. जैसे he would walk in the morning. गांधी जी would spin in the afternoon. सेकंड, यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है. जैसे ही यूजेस टू स्मोक. इनकरेक्ट. ही स्मोक्स. करेक्ट. वी यूज टू ईट. इनकरेक्ट. वी ईट. करेक्ट. रूल 1 कंप्लीटेड. रूल 2. यूज टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, न कि वुड का. जैसे आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स, नाउ आई स्मोक अ पाइप. ही यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन. नोट: फर्स्ट, यूज टू का प्रयोग एफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है. जैसे ए. एफर्मेटिव, ही यूज टू वॉक. बी. नेगेटिव, ही यूज नॉट टू वॉक. He did not used to walk. C. Interrogative. Used he to walk? Did he used to walk? Second, used to का प्रयोग भी accustomed to, अभ्यस्त होना के अर्थ में होता है. इस अर्थ में used का प्रयोग adjective के रूप में होता है तथा इसके पहले be, become, get का प्रयोग अवश्य होता है, जो किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है. इस अर्थ में यूज टू के बाद नाउन या प्रोनाउन जेरंड का प्रयोग निश्चित रूप से होता है. जैसे ही इज नॉट यूज टू ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट. शी इज यूज टू वर्किंग इन अ नॉइजी रूम. आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज. दे सून गॉट यूज टू लिविंग इन द कंट्री. आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट. एल. यूज ऑफ नीड. रूल 1. नीड का प्रयोग की आवश्यकता होना या पड़ना, रिक्वायर और टू हैव टू बी नेसेसरी के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है. जैसे ही नीड्स माई हेल्प. सिंगुलर वर्ब नीड्स. ही नीड्स टू गो देयर. सिंगुलर वर्ब नीड्स. दे नीड टू डू देयर होमवर्क. प्लूरल वर्ब नीड. आई नीड अ बुक. प्लूरल वर्ब नीड. You need some money. Plural verb need. Note: first, need का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है. जैसे I needed his permission to write this book. He needed to talk to her. Second, need का प्रयोग continuous tense में नहीं होता है. जैसे He is needing some books. Incorrect. He needs some books. Correct. थर्ड, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाया जाता है. जैसे ए. नेगेटिव सेंटेंसेस. ही डज नॉट नीड माई हेल्प. दे डू नॉट नीड टू डू देयर होमवर्क. आई डिड नॉट नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक. बी. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. डू यू नीड माई हेल्प? डज ही नीड अ बुक? डिड ही नीड टू कम हियर? फोर्थ, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद जरूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव विद टू, टू प्लस वी का प्रयोग होता है. जैसे आई नीड टू गो देयर. टू गो. करेक्ट. आई नीड गो देयर. इनकरेक्ट. ही नीड्स टू अटेंड द क्लास. टू अटेंड. करेक्ट. ही नीड्स अटेंड द क्लास. इनकरेक्ट. दे नीडेड टू कम हियर. टू कम. करेक्ट. दे नीडेड कम हियर. इनकरेक्ट. रूल 1 कंप्लीटेड. रूल 2. नीड नॉट या नीडेंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है. जैसे
I need not go there. Need, plural form, correct. He need not come here, plural form, correct. Page 250. He needs not come here, incorrect. Needs, singular form. You needn't do this work, correct. Note first, SF का अर्थ सिंगुलर फॉर्म तथा PF का अर्थ प्लूरल फॉर्म होता है. सेकंड, नीड नॉट या नीडंट के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है. जैसे ही नीड नॉट टू गो देयर, इनकरेक्ट. ही नीड नॉट गो देयर, करेक्ट. आई नीडंट टू हेल्प यू, इनकरेक्ट. आई नीडंट हेल्प यू, करेक्ट. रूल 2 कंप्लीटेड. रूल 3, नीड का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में इस प्रकार होता है. जैसे नीड शी गो देयर, नीड ही मीट हिज बॉस. नोट, नीड का प्रयोग हार्डली या ओनली के साथ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह प्लूरल फॉर्म में होता है. ऐसा प्रयोग भी अंग्रेजी भाषा में होता है. जैसे We need hardly remind you of your promise to visit us. She need only sign this form and I shall do the rest. M. Use of dare, D-A-R-E. Rule 1. Dare का प्रयोग साहस करना या हिम्मत करना, to be courageous enough to do something और to have the impudence के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है. जैसे He dares to go there. Dares, singular verb. I dare to oppose my father. Dare, plural verb. They dare to come here. Dare, plural verb. Note, first, dare का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है. जैसे He dared to call me a fool. She dared to oppose her husband. Second, जब डेयर का प्रयोग चुनौती देना या ललकारना, चैलेंज के अर्थ में होता है तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग होता है. जैसे ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच. थर्ड, जब डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाया जाता है. जैसे ए, नेगेटिव सेंटेंसेस. He does not dare to go there. I don't dare to oppose my father. They did not dare to talk to me. B. Interrogative sentences. Does she dare to come here? Do I dare to oppose my teacher? Did they dare to talk to me? Fourth, dare का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद जरूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग होता है. जैसे He does not dare to oppose his boss. Correct. He does not dare oppose his boss. Incorrect. They do not dare to speak against you. Correct. They do not dare speak against you. Incorrect. Rule 1 completed. Rule 2. Dare not या daren't का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है. जैसे I dare not go there. Dare, plural form, correct. He dare not oppose his father. Dare, plural form, correct. He dares not to oppose his father. Dares, singular form, incorrect. Note, dare not या daren't के बाद infinitive with to का प्रयोग नहीं होता है. जैसे He dare not to go there. Incorrect. He dare not go there. Correct. I daren't to call you a fool. Incorrect. I daren't call you a fool. Correct. Rule 2 completed. Rule 3. Dare का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में इन्फिनेटिव विद टू के बिना होता है. जैसे डेयर शी ऑपोज हर फादर, हाउ डेयर यू टच हर. इन वाक्यों में डेयर का प्रयोग मार्जिनल या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, लेकिन हाउ डू यू डेयर टू टच हर में डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है. ध्यान देने योग्य बातें. रूल 1. डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग एक साथ नहीं होता है. जैसे ही शुड मस्ट गो देयर, इनकरेक्ट. ही शुड गो देयर, करेक्ट. ही मस्ट गो देयर, करेक्ट.
You can must solve this sum. Incorrect. You can solve this sum. Correct. You must solve this sum. Correct. Rule 1 completed. Rule 2. डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किसी कंजंक्शन एंड से जोड़कर किया जाता है, जैसे he should and must go there. You can and must love this sum. Rule 2 completed. Rule 3. यदि डबल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किसी कंजंक्शन एंड से जोड़कर एक मेन वर्ब के लिए हो तो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ मेन वर्ब के सूटेबल फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे You have won and will win a lot of prizes. Won, verb 3, win, verb 1. He has not worked hard and will not work hard. Worked, verb 3, work, verb 1. Rule 3 completed. Rule 4. यदि दो सब्जेक्ट्स किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हों तथा उनमें एक सिंगुलर तथा दूसरा प्लूरल हो और दोनों सब्जेक्ट्स कंजंक्शन एंड से जुड़े हों तो दोनों सब्जेक्ट्स के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होता है, जैसे 1 was honest and 5 were dishonest. Was singular verb, were plural verb. Correct. 1 was honest and 5 dishonest. Incorrect. 1 has failed and 6 have passed. Correct. 1 has failed and 6 passed. Incorrect. इन वाक्यों से यह स्पष्ट है कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करने पर या होने पर सेंटेंस गलत हो जाता है. पेज 251. 1 was honest and 5 was dishonest. Was singular verb, was singular verb. 1 has failed and 6 has passed. Has singular verb, has singular verb. These both sentences are incorrect.